Hello students, today we are learning the topic the air for class 7. The air comes from the word atmosphere. Atmosphere, as you know that the word atmosphere means a sphere of vapor. A sphere of vapor means that are lots of mass of gases present in our atmosphere. As you know that there is lots of gases that are present in our atmosphere. This is the earth. Suppose this is our earth. And on the earth there is an atmosphere because of the gravity. There is a gravitation. Because of the gravity there is an atmosphere. As you know that there is a one another satellite, natural satellite of our Earth, Moon. There is no mass, there is no any type of atmosphere because of the low gravity forces. So gravity is important to hold the gases on the Earth. There is so many gases. It is a mixture of gases, lots of gases. So one generally question there from asked in your examination, what is the evident gases found in our Earth? Which is the evident gases found in our Earth? So the answer is nitrogen. Nitrogen found 78%. Nitrogen found 78% on the Earth's surface. So mostly evident gases found on our Earth is nitrogen. नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मिलती है आपके सोलर सिस्टम में, आपके अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय एनिमल्स. Some small bacteria are present in our soil that break nitrogen to that make plants to form nitrogen to usable by the plants, and then animals eat the plants and get the nitrogen from them. Again, one important was oxygen. Everybody know that oxygen are living rays that are help to respirate. We are exhale oxygen and inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So 21% is oxygen present in our atmosphere. That is so vital gas in our atmosphere. That is solid. Or after that, argon. यह फ्री गैस है that are not any किसी से रिएक्शन नहीं करती है. आर्गन 539.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक और यहाँ पे इफेक्ट पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. What is the greenhouse effect? If you daily read the newspaper and you find the greenhouse effect, gases are increased daily basis. So what is the greenhouse effect? What is the meaning of the greenhouse effect? Because of the increase in carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि जो रेडिएशन है, रेडिएशन अर्थ में एब्जॉर्ब किया वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा इनलाइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में वापस से वो गैसेस वापस बाहर नहीं जा पाती. इसलिए जो डेली बेसिस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो CO2 की वजह. नॉट ओनली CO2 इज द कंपोनेंट ऑफ कार्बन. आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू आल्सो CO2, CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन. तो these all are the components that are increased in water vapor also. तो ये इन सब चीज़ों की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग. सो अगेन after that we are reading the sphere of the earth. So these live differently of the earth. There is a, because of the height and temperature, there is some level, there is a 5 level of the different atmosphere. First is one is troposphere.
One is troposphere. Means all the snow, water, water vapor, snow, precipitation, formation of clouds, these are in the troposphere. The average height of troposphere is एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अगर इसके मिनिमम देखा जाए तो 11 किलोमीटर कहीं होती है, कहीं पे ये 18 किलोमीटर तक होती है मैक्सिमम, ये मिनिमम। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी भी हमारे पास इंपोर्टेंट गैसेज है वो सारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलेंगी। ट्रोपोस्फेयर का जो है जो भी सारी इंपोर्टेंट गैसेज हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर। इसकी एक और बहुत अच्छी जो इसका एटीट्यूड है वो ये है कि एवरी 165 या 166 किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका डिक्रीज हो जाता है एवरेज। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कभी भी हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं, अगर मान लीजिए एक माउंटेन है तो हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, स्नो है, देयर इज स्नो। तो ये स्नो क्यों है, व्हाई देयर इज स्नो? बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे द थिंग द माउंटेन आर almost high on the land and its the sun rays are getting first on the mountains, so why it is getting snow? यहाँ पे स्नो क्यों है, क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर है और एवरी 165 मीटर के अंदर जैसे आता है 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये हो गया एक और यहाँ का एटीट्यूड जो है 165 मीटर या 166 मीटर के बाद जो है इसका 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का जो सबसे अच्छा एटीट्यूड है वो ये है कि यहाँ पे जो है क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, देयर इज नो क्लाउड्स बिकॉज क्लाउड्स तो सारे ट्रोपोस्फीयर के अंदर हो गए। यहाँ पे आपको बहुत तेज जेट स्ट्रीम चलेंगी, यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम चलेंगी, जेट स्ट्रीम की वजह से बहुत तेज हवा चलेंगी। और यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आप लोग जानते होंगे ओजोन लेयर जो है सबसे अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज होती है, सन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज आती है, दैट इफेक्ट द कैंसर, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो ओजोन लेयर जो है उसमें आपके ओजोन्स को अल्ट्रावायलेट रेज को वहाँ पे कम कर दिया। और आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है डेप्लीटेशन हो रहा था, ओजोन लेयर जो है उसका नुकसान हो रहा था। तो उसका एक कारण रहा कि जो CFC गैस है, यहाँ पे जो हमने देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है जो कि आपके इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है, आपका रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज होती है CFC गैस, वो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी आपके UNO वगैरह इन्होंने अपना मीटिंग्स करके कोशिश ये की कि CFC की जगह किसी और गैस के हम यूजेस करें। ओजोन लेयर नहीं है यहाँ पे, जेट स्ट्रीम में जितने भी आपके प्लेन्स हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बारिश नहीं होती, तूफान नहीं आते, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड फॉर फ्लाइंग द प्लेन्स, फ्लाइंग द एरोप्लेन वगैरह। देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन वन इम्पोर्टेंट मेसोस्फीयर, अगेन मेसोस्फीयर। द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर लगभग है, 50 किलोमीटर। यहाँ आपकी जो हाइट है वो करीब 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो है आपका बड़ा ही ठंडा रहता है। इसका जो टेम्परेचर है वो -110 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगेन जो टेम्परेचर यहाँ पे था -1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा था, यहाँ पर और घटते घटते -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। मतलब इतना ठंडा होता है कि इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि कितना ठंडा हो जाएगा। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन आवर अर्थ। ये सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के पास आपके पास देन आपका मेसोस्फीयर के पास आपका पड़ जाता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है एक पॉइंट और है, थर्मोस्फीयर जो है, थर्मोस्फीयर में हम लोग क्या करेंगे कि ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी गर्म है, तो गर्मी की वजह से यहाँ
यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पे चार्जेबल आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आयंस मिलते हैं, जो कम्युनिकेशन जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स जो आपके छोड़ी जा रही हैं, जो कि आपके फोन वगैरह के कम्युनिकेशन के लिए चार्जेस आएंगे, सैटेलाइट्स एंड गुड फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन सब चीज़ों के बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे जो चार्जेस आए मिलते हैं, यहाँ पे भी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन आए यहीं पे छोड़े जाते हैं। जितने भी अगर कोई भी सैटेलाइट अगर छोड़ी जा रही है कम्युनिकेशन के लिए है, आपके रिलायंस के लिए है, तो वो सारी चीज़ें आपका थर्मोस्फेयर एंड लास्ट आपका हो गया एक्सोस्फेयर। दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द, ये आगे इनर प्लैनेट्स में मिल जाता है और ये मर्ज हो जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ते करीब ये पहुँच जाता है 500 डिग्री सेल्सियस तक, 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और 5000 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में जाके मर्ज कर जाता है बिल्कुल आपके इंटरप्लैनेट स्फीयर से मर्ज कर जाता है। तो दिस इज ऑल आर द 5 लेयर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे जो है जो वॉल्यूम्स है, जो भी गैसेज हैं वो बहुत कम मिलती है। यहाँ पे केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है और कोई गैस नहीं मिलती। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो आपके सन के ऊपर मिलती है, बस वही गैसेज आपको मिलती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स फाइन। और वी आर, आई थिंक वी होप एंड ऑल आर थिंग यू आर अंडरस्टैंड वेरी गुड।